Hello students, next unit is system of units. First question is, what is need of measurement? Need of measurement. In this chapter we read the units of different quantities. First is when you can measure what you are speaking about and express it in number, you know something about it, but when you cannot express it is in number, your knowledge is unsatisfactory. मीन जे तुसी किसी भी क्वांटिटी ਦਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮਾਸ ਆ, ਲੈਂਥ ਆ, ਟਾਈਮ ਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ। ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਪੀਡ, ਟਾਈਮ, ਮਾਸ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, all quantities which in terms of which laws of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantity। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਫਾਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀ ਚੂਜ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ taken as the reference to measure a physical quantity is called unit of that quantity। means ਹਰੇਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ 3 ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਆ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਆ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਟਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 3 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ 3 ਮੀਟਰ। ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇਹ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, 4, 5, 6 ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ 3 ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਟਰਮਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ NU। N ਇਜ਼ ਏ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, U ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ NU ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫਾਰ ਏ ਗਿਵਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ N1 ਇਜ਼ ਏ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਹ ਫਾਰ ਏ ਯੂਨਿਟ U1 and N2 for a unit 2, then N1 U1 is equals to N2 U2। ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
कॉन्सटेंट है तो अपने को की आ जो N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स ਉਹ यूनिट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ यूनिट ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਟਾਈਮ। ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਮ, ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆ। और जी मास, लेंथ दे टाइम एक ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ। फंडामेंटल यूनिट्स आर दो यूनिट्स विच कैन नैदर बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर एंड नॉर कैन दे फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर एनी अदर यूनिट्स। ना ही आप इन्हों ड्राइव किया अदर दूसरी यूनिट की हेल्प के नाल, ना ही इन्हों की कर सकते आप स्प्लिट कर सकते स्मॉल यूनिट्स के विच। ड्राइव्ड यूनिट्स, the units of all such physical quantity which can be expressed in terms of fundamental units of mass, length and time are called derived unit। ਉਹ units ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। these are called derived units। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆ। ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। डिस्टेंस किहदे च लवांगे आपां, लेंथ दे विच, और टाइम किहदे विच लवांगे, सैकेंड दे विच। मीटर सैकेंड दा यूनिट आ गई स्पीड दी, मीटर पर सैकेंड। ये अपने कोल की आ गया ड्राइव्ड यूनिट, जिहड़ी आपां किहदी हेल्प नाल ड्राइव कीती आ, विद दी हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अपने कोल की होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स दियां। फर्स्ट हैगी आ इट शुड बी वैल डिफाइंड। इट शुड बी वैल डिफाइंड दा मीनस की आ कि एक वैल डिफाइंड होनी चाहिए। कोई भी ये आर्गूमेंट ना कर सके कि ये यूनिट ये जी भी हैगी आ यूनिट ये क्यों आ, कोई भी ये आर्गूमेंट ना कर सके, पूरी प्रॉपरली वैल डिफाइंड होनी चाहिए। सैकेंड कि स्टेबल साइज़ होना चाहिए। स्टेबल साइज़ मीनस ना तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए तो ना ही बहुत ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, स्मॉल हो जानी चाहिए। इट शुड बी ईजली रिप्रोड्यूसेबल एट ऑल प्लेसिस। इन्होंने हमेशा हरेक प्लेस से आप कर सके रिप्रोड्यूसेबल। एंड इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड नॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड फिफ्थ इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टैंपरेचर, प्रैशर। एंड इट शुड बी ईजली एक्सैसिबल मीनस आप ईजली इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सकीए। अगे नैक्सट है कि यूनिट ऑफ मास। मास ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन। ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ बॉडी है ਜਿਹੜੀ स्पेस कंटेन करती है, ਜਿਹੜੀ स्पेस घेरती आ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बॉडी ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ मास। मास ऑफ ए बॉडी इज़ ए क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्ड। नैक्सट ਇਹਦੀ यूनिट ਕੀ ਆ ਜੀ इंटरनेशनल यूनिट है मास ਦੀ किलोग्राम। नैक्सट ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मास, यूनिट, लेंथ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आ। और ये की आ ये बेसिक प्रॉपर्टी आ, ये मेनली यूनिट्स ऑफ मास का क्वेश्चन आता वा ਜਾਂ अपने को डेफिनेशन हैगी आ कि मास की आ। अगे की आ यूनिट की किलोग्राम। किलोग्राम की डेफिनेशन की आऊगी अपने को, किलोग्राम वॉज डिफाइंड द मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर की आ गया वॉल्यूम आ गया कि इन्ने वॉल्यूम का वाटर आ जिहड़ा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ते मीनस 1 क्यूबिक अपने कोल की आ गया वॉल्यूम आ गया वाटर का एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड नैक्सट आ गई अपने कोल इहदे विच नैक्सट टर्म लवांगे आपां यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की डेफिनेशन की आ जानी है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सैपरेशन बिटवीन इट्स टू एंड्स। कि कोई भी अपने कोल रोड आ जां कोई भी ऑब्जेक्ट आ कि उहदे दो एंड पॉइंट्स दे विचकार कितना डिस्टेंस आ सैपरेशन दा, ओहदी की आऊगी अपने कोल लेंथ आऊगी। लेंथ दी यूनिट की अपने कोल मीटर। एंड मीटर दी डेफिनेशन की आ, मीटर इज़ डिफाइंड एज 1/10 millionth of the distance from the north pole of the equator of the earth।
मीनस ये मेजर किया गया कि नॉर्थ पोल आ जिहड़ा इक्वेटर का अर्थ का वह किन्ना पार्ट आ कि 10th मिलियन पार्ट आ जिहड़ा उन्होंने आपां किदां डिफाइन किया गया उन्होंने यूनिट ऑफ लैंथ मीनस उन्होंने 1 मीटर उन्होंने डिफाइन किया गया। नैक्सट इहदी एक अदर डेफिनेशन आ जिहड़ी 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मैजर। तो उन्होंने डेफिनेशन नैक्सट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने कोल की है दी डेफिनेशन कि मीटर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स मार्क्ड ऑन प्लैटिनम रेडियम रोड kept at a constant temperature of 273.16 Kelvin। तो ये अपने कोल की आ सैकेंड डेफिनेशन है जी फस्ट जी दी गई सी 1791 दे विच एंड सैकेंड डेफिनेशन अपने कोल आई आ 1899 दे विच कि दो फाइन लाइन्स आ जिहड़ियां प्लैटिनम रेडियम दे विच जदों आपां नूं कॉन्सटेंट टैंपरेचर रखते हैं। नैक्सट आ गया टाइम। टाइम की डेफिनेशन की आ कि टाइम जिहड़ा कि अपने कोल टाइम इज़ ए सैंपली वट ए क्लॉक रीड जिहड़ा आपां सैंपली की आ क्लॉक तो की करते हैं रीड करते हैं। एंड यूनिट ऑफ टाइम की आ यूनिट ऑफ टाइम इज़ सैकेंड। डेफिनेशन टाइम इज़ ए सैंपली वट ए क्लॉक रीड एंड इट्स यूनिट इज़ second। And second is defined as time taken by the sample pendulum of 1 meter length to swing from one extreme position to the other position। कि सैकेंड कितना टाइम आ एक सिंपल पेंडुलम आ जिहड़ा वो की करदा वा स्विंग करदा वा इहदियां वन एक्सट्रीम पोजीशन तो लैके अदर एक्सट्रीम पोजीशन दे लई अपने कोल एक सेंटर दे विच मेन पोजीशन आ गई तो एक दोनों साइड्स की होंगी वा एक्सट्रीम पोजीशन मीनस इन्हें अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन तो स्विंग किया फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू दी अदर एक्सट्रीम पोजीशन तो कितना टाइम लिया उन्होंने आपां की सपोज करांगे 1 मीटर। नैक्सट टॉपिक आ गया अपने को सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट पेपर दे विच काफ़ी बार आउंदा कि सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। फस्ट इज CGS सिस्टम। CGS सिस्टम जिहड़ा सैटअप किया गया सी फ्रांस दे विच एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दी सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड्स आर दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम्स। इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड नैक्सट सैकेंड हैगा अपने कोल FPS सिस्टम। FPS सिस्टम हैगा अपने कोल एस्टैबलिश किया गया सीगा इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम फुट पाउंड एंड सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। फुट पाउंड एंड seconds are the units of the length mass and time। it is not a metric system। metric means जिन्हों आपां 10 ਦੀ पावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ CGS ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ MKS सिस्टम। MKS सिस्टम आ जिहड़ा फ्रांस दे विच एस्टैबलिश किया गया एंड इहदे अकॉर्डिंग की मीटर किलोग्राम एंड सैकेंड आर दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। मास लेंथ एंड टाइम। इट इज़ आल्सो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट एंड ये अपना जिहड़ा हैगा कि क्लोजली रिलेटेड टू दी CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये CGS सिस्टम के रिलेटेड आ और एक ही है कि कोरेंट सिस्टम की होंदा इट सिस्टम इज सेट टू ए कोरेंट इफ इट्स ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स आर obtained by multiplying or divide its fundamental unit such that no numerical factor is introduced। ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ obtain ਕਰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਦਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ यूनिट्स ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ numerical factor ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
दिस सिस्टम इज़ नोन एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीनस ये अपने को कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस होगा, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप फंडामेंटल यूनिट्स नूं किया ये सिस्टम है जिहड़ा किया फॉर्मड करते हैं। दिस इज़ नोन एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। नैक्सट आ गया अपने को SI। SI की अपने को ये यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम यूज टू obtain the unit of physical quantities in mechanics only। और SI यूनिट्स दा नेम किया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ बोल सकते आप सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ यूनिट्स ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ यूनिट्स यूज़ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦੀ यूनिट मीटर, मास ਦੀ किलोमीटर, टाइम ਦੀ सैकेंड, टैंपरेचर ਦੀ केल्विन, इलैक्ट्रिक करंट एम्पीयर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट प्लेन एंगल, रेडियन, सॉलिड एंगल, स्ट्रेगिन। नैक्सट आ गया अपने कोल बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਆ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਮੋਸਟਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1650763.3 वेवलेंथ in a vacuum of orange red color radiations emit by krypton having mass number 86। मीनस ये अपने कोल वेवलेंथ है जिहड़ा क्रिप्टन है जिहदा मास नंबर की 86 आ। इन्नी लेंथ की वाइब्रेशन है जिहड़ी प्रोड्यूस करदा, उस लेंथ नूं आपां की सपोज करते हैं 1 मीटर सपोज करते हैं। नैक्सट अपने कोल इहदे विच आ गया, नैक्सट हैगा अपने कोल इहदे विच 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, और सेकंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 माइक्रोन और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर और लाइट ईयर। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। की स्पीड ऑफ व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर इज इक्वल टू 365 इंटू 24 आवर इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, and 1 light year is equals to multiply both these quantities and 1 light year is equals to 9.46 10⁻15 मीटर। नैक्सट आ गया अपने को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ए यूनिट नोट कर दिया, इट इज़ मीन डिस्टेंस बिटवीन दी सन फ्रॉम दी अर्थ। मीन डिस्टेंस है जिहड़ा सन दा फ्रॉम दी अर्थ, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.469 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट आ गया पैरालिटिक सेकेंड और पर सेकेंड। इट इज़ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। मीनस आप एक सर्कल लिया वा, सर्कल दे विच एक आर्क लई आ, आर्क दे विच जिहड़ा आर्क दा एक रेडियस आ, वो रेडियस आर्क की लेंथ दे नाल कितना एंगल बना रहा वा, वो एंगल आप सपोज कर लिया थीटा। आर्क की लेंथ आप सपोज की L और रेडियस इहदा की सपोज किया वा आप R। इनू आप इदा कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो तुसी, सर्कल दे विच ओहदी एक आर्क आर्क लिया, आर्क दे विच की आ कि एक रेडियस लिया वा R ते ओहदा थीटा की आ जाऊगा दोनों दे विचकार एंगल आ जाऊ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, R इज इक्वल्स टू L अपॉन थीटा। L की वैल्यू आप सपोज कर लो कि L कि सपोज किया दिता सीगा अपने को 1.496 10⁻11 मीटर। थीटा आप 1 सेकेंड लिया तो पर सेकेंड कि इक्वल आ गया 3.08 10⁻16 मीटर। सैकेंड अपने को आ गई डेफिनेशन किलोमीटर सी किलोग्राम। किलोग्राम की डेफिनेशन तुसी पहला भी कर सकते हो, जी पहला की ये भी डेफिनेशन एक बार देख लो। किलोग्राम इज़ दी मास ऑफ प्लैटिनम रेडियम सिलेंडर kept in international bureaus of weight and measure at near the
ਪੈਰਿਸ ਐਟ ਫਰਾਂਸ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वन अटोमिक यूनिट। वन अटोमिक यूनिट की डेफिनेशन की इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ द वन कार्बन C12 कार्बन एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1.66 10⁻⁻27 kg। थर्ड हैगा अपने कोल सैकेंड। सैकेंड की पहला वाली डेफिनेशन भी तुसीं कर सकते हो। और नैक्सट हैगी इहदे विच कि 1 सैकेंड की आऊगा अपने को इज इक्वल्स टू दी ड्यूरेशन जिन्नियां भी दित्तियां ने वाइब्रेशनस आ जिन्नियां कॉरस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशंस बिटवीन दी टू हाइपरफाइन लैवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम इन दी ग्राउंड स्टेट। मीनस किन्नियां वाइब्रेशन प्रोड्यूस करदा सीजियम 133 एटम जदों कि हुंदा वा कि वो अपने ग्राउंड स्टेट दे विच हुंदा वा टू हाइपरफाइन लैवल ऑफ दी सीजियम। Next is Kelvin. Kelvin is the unit of temperature. It is defined as 1/273.16 friction of the thermodynamic temperature at the triple point of the water. Triple point means ਜਦੋਂ ਵੀ water ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਗੈਸਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਅੰਪੀਅਰ। ਅੰਪੀਅਰ ਕਿਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ? ਕਰੰਟ ਦੀ। ਐਂਡ 1 ਅੰਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟਿਵ ਫੋਰਸ to 10⁻⁷ Newton per meter between the two straight parallel conductor of finite length and negligible circular cross section when placed 1 meter apart in a vacuum। next आ गया अपने कोल कैंडला। कैंडला इज़ ए यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीनस लाइट की जी अपने को लाइट आ रही है वो कितनी ज़्यादा आ रही है, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਵਨ ਕੈਂਡਲਾ ਇਜ਼ ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ 1/600 means 1/6 lakh square meter of a black body at a temperature of freezing platinum and under a pressure of this given quantity Newton per square meter। Next quantity is mole. Mole is a unit of quantity of matter. It is defined as it is the amount of substance containing a same number of elementary units as there are atoms in a 0.012 kilogram of carbon 12। ये अपने कोल की आ जाऊगी मोल दी यूनिट। एंड फर्स्ट वी हैव डन यूनिट ऑफ कैंडला। मोल अगेन देख लो एक बार की होंगी क्वांटिटी ऑफ मैटर कि किन्ने भी अमाउंट ऑफ सबसटेंस ही कंटेन करती है सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्री यूनिट्स एज देयर एटम इन ए 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की इन्नी मीनस जब आप लेने किलोग्राम तो वो कितनी क्वांटिटी वो कंटेन करती है उन्होंने आप की बोलांगे मोल बोलांगे। नैक्सट आ गया 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट के फस्ट यूनिट हैगी आ रेडियन। रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मीनस दो प्लेन के विचकार जिन्ना एंगल बनता पाया। इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल which cut off from the circumference an arc equal to the length of the radius। मीनस कि अपने को 2 रेडिया जो आप सर्कल के किए कि वो सरकमफ्रेंस जोड़ा कट किया इक्वल टू दी लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। कि आप कोई भी दो एक सर्कल ले लिया वो किया वा कि 2 रेडिया जोड़े सर्कल के कट ऑफ किए और जोड़ा भी वो सरकमफ्रेंस एन आर्क इज इक्वल्स टू दी सरकमफ्रेंस आर्क का कि इक्वल आ लेंथ ऑफ दी रेडियस से। एंड प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। स्टेरेडियन इट इज़ ए यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट है इट इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल विद विच इट्स एपेक्स एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर दैट कट्स ऑफ एन एरिया
on the sphere of surface of the sphere equals to the area of sphere whose sides are equal to the radius of the sphere. Solid angle is equals to area cut off from the surface of sphere upon square of radius. Next are the advantages of SI standard system of international units. First है it is a rational system of unit. Rational system of unit क्यों आ क्योंकि एक फिजिक अपने को एक फिजिकल क्वांटिटी आ ਉਹਦੀਆਂ डिफरेंट टाइप्स आ सारियां टाइप्स ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ यूनिट होगी. फॉर एग्जांपल ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ यूनिट ਕੀ ਹੈ ਜੂਲ ਆ. ਇਨ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਐਮਕੇਐਸ ਸਿਸਟਮ डिफरेंट यूनिट्स ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਪਰ એનર્ਜੀ ਦੇ डिफरेंट टाइप्स ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ यूनिट ਆ ਜੂਲ. ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਵਾਟ ਆਰ. ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸੀਜੀਐਸ ਤੇ ਐਮਕੇਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ यूनिट ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ डिफरेंट ਆ. ਐਮਕੇਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟ यूनिट ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਊਟਨ ਆ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਆ. ਬਟ ਐਸਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ यूनिट ਆ ਨਿਊਟਨ. ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ यूनिट ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੂਲ ਹੋਊਗੀ. ਬਟ ਸੀਜੀਐਸ ਤੇ ਐਮਕੇਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ डिफरेंट. ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਐਸਆਈ ਇਜ਼ ਏ ਕੋਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ यूनिट. ਕੋਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਡ ਬੇਸਿਕ यूनिट ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਡ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ यूनिट obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਐਸਆਈ यूनिट ਕੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ. ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕੀ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ यूनिट ਆ. 10th